خبر شامل کریں گے ٹھل سے معصوم بچہ پانی کے تالاب میں ڈوب کر جاں بحق۔ واقعہ گاؤں گڑی حسن میں پیش آیا۔ معصوم نور الدین سرکی کے گھر کے قریب پانی کے تالاب میں نہا رہا تھا کہ گہرے پانی میں ڈوب گیا۔ ورثاء نے بے ہوشی کی حالت میں تالاب سے نکال کر ہسپتال پہنچایا۔ ڈاکٹر نے موت کی تصدیق کر دی۔ خبر شامل کرتے ہیں سمندری سے معمولی تنازع پر نوجوان پر مبینہ تشدد کی فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل۔ مبینہ تشدد کا واقعہ تھانہ سٹی کے علاقے 471 گاہوے میں پیش آیا۔ پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر کے حوالات بند کر دیا۔ میرا بیٹا میلہ دیکھنے گیا تھا، ملزمان نے مبینہ تشدد کا نشانہ بنایا۔ فائرنگ سے علاقہ بھر میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں جہلم سے ایک گھر کے 5 افراد کورونا وائرس کی مثبت رپورٹ ہونے پر سمارٹ لاک ڈاؤن لگا دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر کے حکم پر پولیس نے گلی کے دونوں طرف سے خاردار تاریں لگا کر بند کر دی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 14 افراد میں کورونا وائرس کی رپورٹ مثبت موصول ہوئی۔ ضلع بھر میں ایکٹیو کورونا کے مریضوں کی تعداد 26 ہو چکی۔ شہری کورونا SOPs پر عمل کر کے اپنی اور دوسروں کی زندگی کو محفوظ بنائیں۔ نصیر آباد ریجن میں نہری پانی کی قلت کے خلاف نیشنل پارٹی کی کال پر ہزاروں افراد جھٹ پٹ بائی پاس 0 پوائنٹ پر درخواست کے احتجاج کیا۔ قومی شاہراہ پر ٹائر جلا کر ٹریفک معطل کر دی، گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئیں۔ دھرنے سے نیشنل پارٹی کے ضلعی صدر میر محمد نعیم خان کھوسا، جماعت اسلامی بلوچستان کے ڈپٹی جنرل سیکرٹری انجینئر عبدالمجید بادینی، پیپلز پارٹی نصیر آباد ڈویژن کے صدر میر بلال عمرانی، نیشنل پارٹی کے کامریڈ رفیق احمد کھوسا اور بچار کے کامریڈ گنہور بلوچ، نصیر آباد کے ضلعی صدر جاگر مغیری رستم کھوسا اور ڈاکٹر سرور مغیری اور خدا بخش کھوسا، معروف زمیندار ثناءاللہ کھوسا نے شرکت کی۔ اس موقع پر سیاسی اور سماجی رہنما غلام حسین بگٹی اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا، نصیر آباد ڈویژن بلوچستان کی گرین بیلٹ ہے۔ اس موقع پر مقررین نے مزید کہا کہ سالانہ اربوں روپے بھل صفائی، نہروں کی کھدائی اور مرمت کے نام پر خرد برد کر جاتی ہے۔ اسٹیٹ سیکرٹری کے فرائض رواد خان بلوچ اور عبدالغنی بلوچ نے انجام دیے۔ آخر میں مرکزی جوائنٹ سیکرٹری عبدالرسول بلوچ اور ضلعی صدر نعیم خان کھوسا نے شرکا کا شکریہ ادا کیا۔ اب رخ کرتے ہیں ضلع سبی کا۔ ڈپٹی کمشنر سبی جناب زاہد شاہ صاحب کی سربراہی میں سرکٹ ہاؤس سبی میں گرین پاکستان مہم پلانٹیشن سیزن 3 کا باقاعدہ آغاز کیا گیا، جس میں ضلع سبی اور گردنواہ کے علاقوں میں 20,000 کے قریب پودے لگائے جائیں گے۔ آگے اور پہلے ہفتے میں تقریباً 8,000 پودے لگائیں گے اور پودے لگانے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ڈپٹی کمشنر سبی جناب زاہد شاہ صاحب نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا، اس حوالے سے دیکھتے ہیں سبی سے ہمارے نمائندے شوکت سولنگی کی یہ رپورٹ۔ جی، ملک بھر کی طرح آج ضلع سبی میں بھی گرین پاکستان پلانٹیشن مہم کا باقاعدہ آغاز کیا گیا، جس میں ڈپٹی کمشنر سبی جناب زاہد شاہ صاحب نے اپنے 10 مبارک سے پودا لگا کر آغاز کیا۔ اس موقع پر ضلع سبی کے تمام سرکاری محکمہ کے آفیسران نے شرکت کی، جس میں DHO ہیلتھ محمد اکبر سولنگی، MS ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہسپتال سبی غلام سرور ہاشمی، ڈاکٹر زاہد اور ڈپٹی ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ احمد نواز لاشاری صاحب اور DO ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ تمام آفیسران نے پودے لگا کر مہم کا آغاز کیا۔ اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر سبی زاہد شاہ صاحب نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا، اور یہ سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ اسی کی یہ کڑی ہے کہ سبی میں بھی ہم نے اس کا افتتاح بھی کیا اور اس دفعہ ہم 20,000 کے قریب جو ہے نا پودے لگائیں گے اور پہلے ویک میں ہم تقریباً 8,000 کے قریب پودے لگائیں گے۔ اور جس طرح سے آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اب جب پلانٹنگ بھی کی تو ہم سب کی خواہش یہ تھی کہ ہم جلد سے جلد کسی سایہ درخت کے نیچے چلے جائیں اور انٹرویو دے دیں یا آپ سے بات کریں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سبی جیسے گرم علاقے میں پلانٹس کی درختوں کی کتنی اہمیت ہے۔ تو جس طرح سے ہمارے نیشنل سلوگنز ہیں کہ ایچ ون شوڈ ٹیچ ون، کہ ہم میں سے ہر بندہ ایک بچے کو پڑھائے، تو میری سبی کے عوام سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ ایک سلوگن یہ بھی بنائے کہ ایچ ون آف اس شوڈ پلانٹ اے ٹری، کہ ہم میں سے ہر کوئی اگر ایک درخت بھی لگائے اور پھر باقاعدہ سے اس کی نگہداشت بھی کرے، اور اس کی مثال اس طرح سے جس طرح سے ہم بچوں کی جو ہے نا نگہداشت کرتے ہیں۔ تو اس مہم کو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی، اسکول بھی ہمارے کھل رہے ہیں اور میرے ساتھ میرے لائن ڈپارٹمنٹ کے سارے آفیسرز بھی ہیں، تو کوشش یہ ہوگی کہ اس دفعہ ہم اس کو بھرپور انداز سے منائیں۔ آپ صحافی حضرات سے بھی یہ گزارش ہے کہ اس پیغام کو سبی کے جتنے لوگ ہیں ان تک پہنچائیں کہ ہمارے پاس پلانٹس ہیں، فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی بڑی اچھی کاوش ہے، ان کے نرسریز ہیں، وہاں سے پلانٹس ہم ان کو پرووائڈ کر دیں گے۔ باقی یہ ہے کہ اگر ہر بندہ یہ اپنی مطلب قومی ذمہ داری سمجھ کے اس کو نوبل کاز کے طور پہ اٹھا لے اور درخت لگائے تاکہ ہم سبی کو
मज़ीद ग्रीन बना सकें और टेम्परेचर में अगर कुछ डिग्री का फ़र्क हमारे किसी भी प्रोविंस से आ जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। कैमरा टीम के साथ शौकत सोलंकी, आवाज़ चैनल न्यूज़ सिब्बी। खबर शामिल करते हैं जहलम से। नुमाइंदा PNN अब्दुर्रहमान गुज्जर पर कातिलाना हमला। नवाही इलाका ठठी गुजरा में जमीन के तनाज़े पर तसादुम के नतीजे में नुमाइंदा PNN अब्दुर्रहमान का हकीकी चचा जाफक, 3 अफराद जख्मी। मुलजिमान ने आहनी राडों डंडों से हमला किया था। लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस मौका पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे कर रही है। जावक होने वाला शब्बीर अहमद, जबकि जख्मियों में नुमाइंदा PNN अब्दुर्रहमान, ताहिर इकराम और शाहिद इकराम शामिल हैं। मुलजिमान मौका से फरार हो गए, जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। कादिरपुरा के इलाका मोजाम मतीतुल में दावत इस्लामी की ज़ेर एहतमाम शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। हुकूमती हिदायत के मुताबिक जहां ज़िले इंतजामिया और दीगर अवामी और समाजी तंजीमों की जानिब से शहर और गिरदनवाह में शजरकारी मुहिम का सिलसिला जारी, वहीं पर दावत इस्लामी की जानिब से भी शहर के मुख्तलिफ मकामात पर पौधे लगाकर भरपूर तरीके से शजरकारी मुहिम शुरू कर दी गई है, ताकि माहौल को आलूदगी से पाक करके सरसब्ज़ शादाब और साफ सुथरा बनाया जा सके। इस मौका पर मलिक मोहम्मद मुजफ्फर जज अठंगल एडवोकेट हाई कोर्ट ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा पौधे लगने से ही माहौल को साफ सुथरा रखा जा सकता है। अब रुख करते हैं जिला सिब्बी का। सिब्बी पुलिस की कामयाब कार्रवाई। सिब्बी हिंदू ताजर के घर में डकैती के मुलजिमान को सिब्बी पुलिस ने बरवक्त गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान से सोने की चूड़ियां, असला और सरकारी मोटरसाइकिल बरामद कर लिया है। एक मुलजिम ने इब्तदाई तफ्तीश के दौरान 10 से ज़ायद वारदातों का एतराफ़ कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान में से मोहम्मद आलमगीर नायब रिसालदार और दूसरा मुलजिम मोहम्मद जहांगीर साबिक लिबी सिपाही। आइए इस हवाले से देखते हैं सिब्बी से हमारे नुमाइंदे शौकत सोलंकी की ये रिपोर्ट। जी, ज़िला सिब्बी में रात के वक्त 2 डाकू हिंदू ताजिर जयराम दास के घर में दाखिल हुए। डाकुओं ने जैसे ही लूटमार शुरू की तो फ़ौरन पुलिस को इतला दी गई। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए दोनों डाकुओं को मौके पर गिरफ्तार कर लिया। डाकुओं से असला समेत सोने के जेवरात बरामद कर लिए गए। दोनों डाकुओं के पास सरकारी मोटरसाइकिल और असला बरामद हुआ। इनमें से एक डाकू लेविस फोर्स का मुलाजिम था। डाकुओं में से एक का नाम आलमगीर और दूसरे का नाम जहांगीर है। आलमगीर नायब रसालदार लेविस फोर्स और दूसरा मुलजिम मोहम्मद जहांगीर साबका लेविस सिपाही है। इस मौके पर मीर असगर मरी ने पुलिस की कामयाब कार्रवाई पर SSP सिब्बी जनाब खालिद मुस्तफ़ा कोराई को फूलों का हार पहनाया। इस मौके पर SSP सिब्बी खालिद मुस्तफ़ा कोराई ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, मीडिया की तरफ से आपको और आपकी टीम को अप्रिशिएट करते हैं कि इन्होंने बर वक्त कार्रवाई करके मुलजिमान को अरेस्ट किया। मज़ीद इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली भाई ये जिस वक्त एक इंसिडेंट हुआ है उसी वक्त पुलिस जो है वो ऑन रूट थी और 1 मिनट के अंदर पुलिस पहुंची है। पुलिस का एनकाउंटर हुआ है और इन्होंने जयराम जो है यहाँ पर एक अच्छा कारोबारी आदमी, शरीफ आदमी है जिसकी यहाँ पर एक रेपुटेशन है, उसके घर में ये लोग घुसे थे। तो फिर पुलिस जो है पहुँची है। पुलिस ने 2 बंदे पकड़े हैं। एक जो है वो नाम अपना बता रहा है आलमगीर और दूसरा बता रहा है जहांगीर। आलमगीर बता रहा है कि मैं नायब रसालदार हूँ लेविस का और दूसरा जो है वो साबका लेविस का कांस्टेबल है और इनसे एक 9mm सरकारी पिस्टल भी रिकवर हुआ है और सरकारी मोटरसाइकिल भी रिकवर हुई है और तफ्तीश जारी है। और ये वहाँ के सामने ऊपर छत से गिरा है जिसमें जो है इसके टांग में भी मसला हुआ है और बाकी पुलिस तफ्तीश कर रही है। अल्लाह बेहतर करे। मीडिया के सवालात पर डाकुओं का क्या कहना था, आइए सुनते हैं। उसका हिस्सा होने के बावजूद आप इस तरह की कार्रवाइयाँ करें, क्या वजह है इसकी? जी जी तो पहली दफ़ा इनको पहले भी तमाम मोतिल थे लोग, उन्हीं की वजह भी कोई यही होगी। गैर हाज़िरी में भी तव्हां अहिड़ी कार्रवाई कंदा हूंदव तो तव्हां गैर हाज़िर थिया हूंदव। कैमरा टीम के साथ शौकत सोलंकी, आवाज़ TV चैनल न्यूज़ सिब्बी। खबर शामिल करते हैं हरवनाबाद से। महंगाई से परेशान अवाम को पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की सूरत में एक और झटका। पहले से पिसी हुई मजीद परेशानी से 2-4 पेट्रोल और डीजल की कीमतें मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह को छूने लगी। मजीद इसके हवाले से देखते हैं हरवनाबाद से अरशद अली गौरी की रिपोर्ट।
मुल्क में जारी महंगाई के वारों से आवाम बेहाल हो गई। हुकूमती दावे सिर्फ तफले तसलियों तक ही महदूद होकर रह गए। मौजूदा हुकूमत की तरफ से महंगाई को कंट्रोल करने के दावों के बरक्स रोज़मर्रा की एशिया की कीमतों में इजाफे ने आम आदमी का जीना दोभर कर दिया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें मुल्क में रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुकी हैं, जिससे किरायों समेत हर चीज़ की कीमत में इजाफा हो रहा है। महंगाई ने हुकूमती नाअहली सब पर अयां कर दी है। मुल्क भर की तरह हारूनाबाद में भी अवामी सतह पर हुकूमती नाअहली पर शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है। हारूनाबाद के मजदूर और सफेद पोश तबके की तरफ तब्दीली की इस खौफनाक शक्ल और सूरत पर कहना है कि ये हुकूमत समुंदर से तेल निकालने की बजाय आम आदमी का तेल निकाल रही है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के मशीर इस महंगाई की जो भी दलीलें दे, जब आम आदमी बाजार का रुख करता है तो वो हुकूमत को कोसे बिना नहीं रह सकता। कैमरा टीम के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद। खबर शामिल करते हैं जिला अटक की तहसील जंड के गांव बसाल से हमारे आवाज न्यूज के रिपोर्टर जुबैर खान की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान अहमद खान बुज़दार ने कहा कि अटक उनके दूसरे घर की तरह है और वो इस इलाके की आवाम को अपने दिल के करीब रखते हैं। अटक की तरक्की और फलाह के लिए बहुत जल्द बड़े तरक्याती पैकेज का ऐलान किया जाएगा। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार बसाल शरीफ अटक में हजरत ख्वाजा मीर अहमद चिश्ती के मदार पर हाजिरी के बाद अवाम की बड़ी तादाद से खिताब करते हुए किया। दरबार आलिया अहमद के मौका पर सजादा ख्वाजा निजामुद्दीन ने उनका इस्तकबाल किया और मौजूदा माली साल में बहुत जल्द बड़े पैकेज का ऐलान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस साल सूबा भर के जिला तरक्याती फंड में 360 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। मौजूदा हुकूमत में तरक्की का नया दौर शुरू हुआ है और वो इस संबंध में हर जिला, तहसील और गाँव का दौरा करे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने बसाल को मॉडल विलेज और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बसाल को ख्वाजा मीर अहमद कॉलेज बसाल बनाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि उनकी हर मुमकिन कोशिश है कि वो पंजाब के हर गाँव को जदीद तरीन सहूलियात से मुज़य्यन करें। इस मौका पर हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएंगी। उनके मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। चीचा वतनी सिटी पुलिस ने फायरिंग करने वाले 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान से नाजायज असला पिस्टल 30 बोर बरामद। मुलजिमान के खिलाफ नाजायज असले की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। मुलजिमान ने गुज़िश्ता 2 रोज कबल भी खवातीन कॉलेज के करीब फायरिंग करके खौफ व हरास फैलाया था। चीचा वतनी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद काशिफ असलम के हुक्म पर DSP सर्कल राना अकमल रसूल की सरबराही में सिटी पुलिस की जराम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाई। गुज़िश्ता 2 रोज कबल फायरिंग करके इलाके में खौफ व हरास फैलाने वाले 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से नाजायज असला 2 अदद पिस्टल 30 बोर बरामद। थाना सिटी में नाजायज असले की दफात के तहत अलग अलग मुकदमा दर्ज करके पाबंदी से हासिल कर दिया। कामोनकी में मैट्रिक इम्तिहान में लीगी MNA के बेटे की जगह पर पेपर देने वाला नौजवान रंगे हाथों पकड़ा गया। पुलिस ने MNA के बेटे समेत 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि मुलजिम फरार होने में कामयाब हो गया। गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 सेंटर नंबर 66 कामोनकी में लीगी MNA चौधरी जुल्फिकार अली भंडर के बेटे फरहान रोल नंबर 604748 का इंटरमीडिएट का इम्तिहान था, जिसकी जगह पर खबीब नामी नौजवान इम्तिहान दे रहा था, जो कि सेंटर सुपरिटेंडेंट ने उसको शक गुजरने पर रंगे हाथों पकड़ लिया, मगर वो फरार होने में कामयाब हो गया। जबकि थाना सिटी पुलिस ने सेंटर सुपरिटेंडेंट अदील नजरबेर की मुद्दत में लीगी MNA के बेटे फरहान और खबीब के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। किलात से फैज निजारी की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे मुल्क की तरह जिला किलात में भी इस साल की मानसून शजरकारी मुहिम का आगाज महकमे जंगलात के ज़ेर एहतमाम शजरकारी मुहिम जोरों शोर से जारी। डिप्टी कमिश्नर किलात सुल्तान अहमद बुगटी, ADC सैयद मकसूद शाह, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर किलात फरीद अहमद रिन, आगा हिफ्जुर रहमान शाह, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर मुख्तार अहमद, फॉरेस्टर हबीबुर रहमान लहड़ी और दीगर ने DC ऑफिस किलात में पौधे लगाकर मूनसून शजरकारी का आगाज किया, जिसमें हजारों पौधे तकसीम किए गए और मुख्तलिफ सरकारी और पब्लिक मकामात पर मुख्तलिफ इक़साम के पौधे लगाए जाते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से ऐलान करदा बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम मुल्क को सरसब्ज़ और शादाब बनाने के लिए अमली इक़दाम उठाए जा रहे हैं, जिसके तहत मुल्क भर की तरह जिला किलात में भी शजरकारी जोरों शोर से जारी है। यहाँ पर मुख्तलिफ मकामात पर मानसून शजरकारी मुहिम के दौरान तकरीबन 20,000 पौधे लगाने का हदफ रखा गया है, जिससे मुकम्मल किया जाएगा। सरसब्ज़ पाकिस्तान हमारा मकसद है। आवाम इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। महकमा जंगलात किलात उन्हें पौधे फराहम करेगी। खबर शामिल करते हैं हारूनाबाद से। मेयर बहावलपुर अकील नजम हाशमी और चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल लोधरा और सदर लोकल गवर्नमेंट डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान ADLG का हारूनाबाद का खसूसी दौरा। इस मौका पर म्यूनसिपल कमेटी हारूनाबाद के वाइस चेयरमैन मलिक मोहम्मद रियाज खिलजी के हमरा गुफ्तगू करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मार्च में बल्दियाती इदारों की बहाली के लिए तारीखी फैसले के तकरीबन 4 माह गुजरने के बाद भी पंजाब हुकूमत की जानिब से नवामी मुंतखब इदारों को इनकी कानूनी हक से महरूम रखा गया है। जमहूरी अकल की
عمل کی ضرورت اور پہچان ہے. ہمارے دور کا مقصد سپریم کورٹ آف پاکستان کے تاریخ ساز فیصلے پر عمل درآمد کے حوالے سے پنجاب بھر کی منتخب بلدیاتی قیادت کے ساتھ رابطہ کر کے مشترکہ لائحہ عمل کے ساتھ کام کرنا ہے. پنجاب حکومت کا رویہ افسوسناک اور غیر جمہوری ہے، جس سے عوام کے مسائل کا انبار بڑھتا جا رہا ہے. لوگوں کے ان مسائل کے حل کے لیے سنجیدہ فورم بلدیاتی اداروں کو تمام تر اختیارات کے ساتھ بحال اور فعال کرنے میں ہی ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے تاریخی فیصلے کا مقصد اور مفہوم بھی یہی پہلو ہے. ہم آئین اور قانون کے تحت بلدیاتی نظام کی بحالی کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے اور امید رکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر اس کی روح کے مطابق عمل درآمد کیا جائے گا. ٹوبا ٹیکسنگ میں حکومت ٹیکسز کی مد میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم کرنے کے لیے متحرک. کمشنر FPR رانا وقار کی ٹوبا ٹیکسنگ آمد جہاں ضلع بھر کی تاجر برادری سے ملاقات کی اور ٹیکسز کے حوالے سے بات کی. اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر FPR راہیل اختر اور اسسٹنٹ کمشنر محمد الطاف بھی موجود تھے. کمشنر FPR جھنگ زون رانا وقار کی ضلع ٹوبا ٹیکسنگ کے تاجران سے میٹنگ. اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر FPR جھنگ زون راہیل اختر اور اسسٹنٹ کمشنر FPR محمد الطاف بھی موجود تھے. ضلعی انجمن تاجران نے کمشنر FPR رانا وقار کا استقبال کیا اور پھولوں کے گلدستے پیش کیے. کمشنر FPR رانا وقار نے کہا کہ حکومت کی جانب سے جاری کردہ ٹیکسز کو ہر صورت ادا کرنا ہوگا. اس کے علاوہ تمام تاجروں کو فائلر بنے تاکہ کاروبار آسانی کے ساتھ ہو سکے. حکومت تاجروں کو بے بنیاد سہولیات مہیا کر رہی ہے. ملک کو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بہت زیادہ ہے، اس لیے ٹیکسز ہر صورت جمع کروانا ہوگا. خبر شامل کرتے ہیں مٹیاری سے. پاکستان تحریک انصاف یوتھ ونگ ضلع مٹیاری کے جنرل سیکرٹری دیکب کبار جیرامانی، سینئر نائب صدر اظہر حسین ملا، تعلقہ صدر علی رضا کھوسو، ایڈیشنل جنرل سیکرٹری رستم کھوسو اور دیگر کارکنان کی جانب سے پاکستان پیپلز پارٹی کے غنڈوں کے خلاف مٹیاری پریس کلب پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. اس موقع پر رہنماؤں کا کہنا تھا کہ حلیم عادل شیخ سندھ کی آواز بلند کرتا ہے. گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی نائب صدر اپوزیشن لیڈر سندھ حلیم عادل شیخ پارٹی کے کارکن کی شادی کی تقریب میں گئے تھے. پولیس کی طرف سے بھی کوئی سیکیورٹی نہیں تھی. جو بھی واقعہ پیش آیا ہے وہ پری پلان تھا اور آج اس سندھ سے مطالبہ کرتے ہیں جن غنڈوں نے حملہ کیا ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے. رپورٹ کریں اپنی کیمرامین ٹیم کے ساتھ بیورو چیف نثار احمد شو. گجرانوالہ سے بیورو چیف آواز نیوز ندیم ساگر کی رپورٹ کے مطابق گجرانوالہ PHA امپلائیز یونین کا چیئرمین PHA کے خلاف احتجاج. احتجاجی شرکا کا کہنا تھا کہ موجودہ چیئرمین ایسے حمید کو ملازمین کی مشکلات کا کوئی احساس نہیں. ایسے حمید کو چیئرمین PHA کے عہدے سے ہٹایا جائے. دیگر اداروں کی طرح PHA کے ملازمین کو بھی اسپیشل الاؤنس دیا جائے. مظاہرین کا مطالبات کی منظوری تک قلم چھوڑ ہڑتال کا اعلان. راہیل عباسی کی رپورٹ کے مطابق RPF ملتان سید خرم کا خانے وال اور میاں چنو کا دورہ تھانہ جات کے ریکارڈ بھی چیک کیے. RPF ملتان سید خرم علی شاہ نے تھانہ کہنا مختوم پور اور تھانہ کچاکو کا معائنہ کیا اور RPO نے تلمبا سٹی اور تھانہ صدر میاں چنو کا بھی معائنہ کرتے ہوئے تھانوں کے عمارات اور صفائی کا بھی جائزہ لیا. RPF ملتان نے تھانوں کا ریکارڈ بھی چیک کیا. فرنٹ ڈیسک حوالات اور مال خانہ کا جائزہ لیتے ہوئے حوالات میں بند ملزمان سے جرائم کی نوعیت کے بارے میں بھی پوچھا. RPF ملتان کا کہنا تھا کہ تھانوں میں صفائی کے نظام کو بہتر بنانے اور شجرکاری کرنے کی بھی ہدایت دی. بعد ازاں RPF ملتان نے تھانے میں آئے سائلین سے ملاقات کی اور سائلین کے مسائل فوری حل کرنے کی یقین دہانی بھی کروائی. RPF ملتان کا کہنا تھا کہ پولیس افسران جرائم پیشہ افراد سے کوئی رعایت نہ برتیں گے. سردار ڈاکٹر غلام علی عباس عرف پپو خان چاچڑ نے کہا کہ 50 سال سے ضلع گھوٹکی کی مہر لند دریجہ دھر 50% کو ووٹ دے رہے ہیں جبکہ ہمیں کچھ نہیں ملا. ضلع گھوٹکی کے لوگ بے روزگار ہیں، بجلی، گیس، سڑکوں اور تمام بنیادی سہولیات سے محروم ہیں. ضلع گھوٹکی کے عوام کو روزگار دینے کے بجائے کروڑوں کی گفٹ گاڑیاں لینے میں مصروف ہیں. مختلف برادریوں کے اتحاد کے ساتھ ساتھ ہمارے امیدوار کے ساتھ تمام حلقوں پر مقابلہ کریں گے اور عام انتخابات میں یہاں NA 205 اور PS 21 سے مقابلہ کریں گے. ڈاکٹر غلام علی عباس اور پپو جان کاکر. خبر شامل کرتے ہیں بورے والا سے. PTI رہنما کا اسسٹنٹ کمشنر کی جانب سے ترقیاتی کاموں میں تاخیر کے خلاف احتجاجی جلسہ. اسسٹنٹ کمشنر پر جان بوجھ کے منصوبوں کو فائل نہ کرنے اور جاری ترقیاتی کاموں میں تاخیر کرنے کا الزام. PTI رہنما سابقہ ٹکٹ ہولڈر خالد چوہان، خالد نثار ڈوگر، ہمایوں چشتی نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے الزام لگایا کہ اسسٹنٹ کمشنر عمر فاروق بورے والا میں ہمارے دیے گئے منصوبوں کو فائنل نہیں کر رہے جبکہ جاری منصوبوں میں بھی رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں. خالد نثار ڈوگر کا کہنا تھا ورلڈ بینک کے پروجیکٹ میں تاخیر کا ذمہ دار اسسٹنٹ کمشنر ہے. ان کی نااہلی کی وجہ سے شہر کھنڈر کا منظر پیش کرا ہے. اسسٹنٹ کمشنر کا تحریک انصاف کے کارکنوں کے ساتھ رویہ غیر مناسب ہے. مقررین نے سابق ممبر قومی اسمبلی اور PTI رہنما نذیر جٹ کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا.
खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से। थाना गरजाक और थाना सैटेलाइट टाउन पुलिस की बड़ी कार्रवाई। डकैती की दर्जनों वारदातों में मुलव्विस 2 खतरनाक गैंग के 7 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से 4 मोटरसाइकिल, मोबाइल, लाखों रुपए नकदी और जदीद असला बरामद। मुलजिमान डकैती और राहजनी की दर्जनों वारदातों में पुलिस को मतलूब थे। CPO सरफराज अहमद फल्की का कहना है मुलजिमान का दौरान तफ्तीश दर्जनों वारदातों में मुलव्विस होने का इंकशाफ। मुलजिमान की गिरफ्तारी से राहजनी की वारदातों में कमी आएगी। खबर शामिल करते हैं अहमदपुर शिरकिया से। वापडा पाकिस्तान हाइड्रोइलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन ज़ेरे तहत खुर्शीद खान और गुलाम रसूल गुज्जर के हुक्म पर पूरे पाकिस्तान में स्टाफ की कमी, लाइनमैन की शिकायत और मुनासिब TSP न होने पर हड़ताल और एहतजाज। अहमदपुर शिरकिया वापडा फर्स्ट डिवीजन में ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रोइलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन के अहदेदारान डिवीजनल चेयरमैन राव वकील की क़यादत में वाइस चेयरमैन शफीकुर रहमान, जनरल सेक्रेटरी गुलाम मुस्तफ़ा, जॉइंट सेक्रेटरी साजिद हुसैन अल्ताफ, अहमद मोहम्मद शफीक, महबूब अहमद, शमशेद हुसैन, मकबूल हुसैन, मोहम्मद जमील, मोहम्मद हाशिम ने एहतजाज करते हुए कहा कि अथॉरिटी ने हमारे मुतालिबात जैसे स्टाफ की कमी, लाइनमैन की शिकायत और मुनासिब TSP की फौरी भर्ती, यूनिफॉर्म और 9 साल से भर्ती ना की गई। हजारों सीटें खाली पड़ी हैं। मैपको में रेगुलर स्टाफ की कमी है। बाइस आए रोज हादसात मामूल बन गए हैं और लाइनमैन से सेफ्टी आलात के बगैर बिजली के पोल पर काम कर रहे हैं। आए रोज हमारा फील्ड स्टाफ काम करते हुए शहीद हो जाता है। अगर अथॉरिटी ने हमारा मुतालबा पूरा ना किया तो हम मजीद एहतजाज बढ़ा देंगे। गुजरांवाला में निजी हाउसिंग सोसाइटी मास्टर सिटी के दफातर और अमलाक पर सरपसंदों का हमला। डीलर एसोसिएशन के रहनुमा मुदस्सिर हुसैन घुम्मन ने मुतालबा किया कि हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने तक एहतजाज जारी रहेगा। मास्टर सिटी हाउसिंग सोसाइटी के डायरेक्टर अहमद बिन मकसूद पर चंद रोज कबल शरपसंद अनास ने डंडों, सोटों, सुरियों लेस होकर हमला किया, जिसमें अहमद बिन मकसूद जख्मी हुए। हमलावरों ने मास्टर सिटी इंतजामिया मालिकान के दफातर और गाड़ियों की तोड़फोड़ की। इस वाक़े में पुलिस ने भी रवायती गफलत का मुजाहरा करते हुए 1 घंटा लेट पहुंची। मास्टर सिटी हाउसिंग स्कीम गुजरांवाला के डायरेक्टर अहमद बिन मकसूद का कहना है कि मुझ पर हमला सोची समझी साजिश के तहत कातिलाना हमला किया गया। सब तो पहले तो गल ये कि मास्टर सिटी जिहड़ा है वो साडा घर है ते कोई भी शख्स ये नहीं चाहता कि अपने घर नूं जिहड़ा ना वो अग दे विच जिहड़ा ना वेखिया जाए। असी इंशाअल्लाह मास्टर सिटी की तरक्की वास्ते भरपूर जिहड़ा ना इन्हां दे नाल आ, लेकिन असी रहायशियां दे नाल भी आ, उन्हां दी तकलीफ नूं समझने आ, लेकिन ये कोई तरीकाकार नहीं हैगा कि इस तरह का जिहड़ा ना तशद्दद किया जाए या इस तरह का जुल्म या जबर किया जाए। ये कोई तरीकाकार नहीं हुंदा। एहतजाज का कोई अच्छा अंदाज हुंदा है जिहदे विच तुसीं अपनी गल नूं बयान करो। तो मेहरबानी है सारे दोस्त जिहड़े इत्थे माशाअल्लाह पढ़े लिखे सोसाइटी है तो सारे जिहड़े ने वो मिल के जिहड़ा ना रहन। ये शेख साहब ने आज तक जितने भी वादे किए हैं वो तकरीबन मुकम्मल हुए हैं। तकरीबन हर चीज़ आ गई है। 1-2 चीज़ जो रह गई है वो भी वो हमें पूरी यकीन दहानी करा रहे हैं कि वो जल्द अज जल्द बिजली ले आएंगे। वो इस वजह से जो राशियों ने अच्छी हरकत की है इसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। तमाम डीलर्स और इन्वेस्टर हजरात, तो ऐसा राशियों को नहीं करना चाहिए था। अस्सलाम। खबर शामिल करते हैं अहमदपुर शिरकिया से। काफिला सफीरान अमन बहावलपुर ने तहसील अहमदपुर शिरकिया का दौरा किया, जहां उन्होंने तमाम मुकातबे फिक्र से ताल्लुक रखने वाले उलमाए किराम, अंजुमन ताजरान और तहसील अमन कमेटी के नुमाइंदगान से मुलाकात की और अहमदपुर शिरकिया जना हॉल में अजलास मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत डिप्टी कमिश्नर इरफान अली काठिया और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद फैसल कामरान ने की। इस दौरान अमन कमेटी के मेंबर सैयद सलाहुद्दीन जलानी ने खिताब करते हुए कहा कि अहमदपुर शिरकिया अमन का गहवारा है और जुलूसों की निगरानी करना हम सब का फर्ज है। मुहर्रम हमें मोहब्बत और अमन का दर्स देता है। तमाम मुकातबे फिक्र हमारे शाना बशाना है। इस मौका पर उन्होंने कहा कि काफिला सफीरान अमन के शुरका, भाईचारा और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का अमन का पैगाम दें। जिला बहावलपुर की तमाम तहसीलों का दौरा कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहावलपुर जिला में अमन अमान की फिजा बरकरार है। काफिला सफीरा अमन में सदर अंजुमन ताजरान हाफिज मोहम्मद यूनफ, इलामा शफकतुर रहमान, एहसान उल राहिल, इलामा कदीर हाशमी, फकीर हबीबुर रहमान अख्तर, सरदार सलीम खान बलूच, मोहम्मद अबू हमजा, इलामा अब्दुल रज़ाक शाह, गोहर मुमताज नकवी, रियाज हुसैन कुरैशी और सैयद मुजीब गिलानी ने शिरकत की। गुजरांवाला से ब्यूरो चीफ आवाज न्यूज नदीम सागर की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर गुजरांवाला मियां रिफतया की जेर निगरानी माह जुलाई में भी रेस्क्यू एहलकारों की जिस्मानी फिटनेस जांचने के लिए फिजिकल टेस्ट लिया गया। फिजिकल टेस्ट लेने का मकसद रेस्क्यूज का किसी भी नागहानी सूरत में बर वक्त और बेहतर अंदाज में निपटने के लिए खुद को तैयार करना है। डायरेक्टर जनरल पंजाब एमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट डॉक्टर रिजवान नसीर की हिदायत पर तमाम रेस्क्यूज का फिजिकल टेस्ट हर माह मुनक्किद किया जाता है ताकि रेस्क्यू की कारकर्दगी को बेहतर बनाया जाए। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर गुजरांवाला मियां रिफतया का कहना था, रेस्क्यूअर्स किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए 24 घंटे हरदम तैयार हैं।
हारूनाबाद में एक और मयारी प्राइवेट क्लिनिक का इजाफा। सीनियर फिजिशियन नुमान बिन अरशद ने मुस्लिम क्लिनिक मिलाद चौक का इफ्तिताह किया। तकरीब में मौजूद शहर समेत डॉक्टर्स की खसूसी शिरकत। हारूनाबाद के मारूफ इलाका मिलाद चौक में एक मयारी प्राइवेट क्लिनिक का कयाम। शहर की जानी पहचानी शख्सियत मलिक वाजिद की तरफ से शहरियों की सहूलत के लिए मिलाद चौक में मुस्लिम क्लिनिक कायम किया गया, जिसका इफ्तिताह शहर के मशहूर और सीनियर फिजिशियन डॉक्टर नुमान बिन अरशद ने डॉक्टर आमिर रजा डॉक्टर आरिफ के साथ किया। तकरीब में मलिक अफसल अंजुम, मलिक अब्दुल खालिक, मलिक तारिक, मलिक आसिफ, मलिक इखलाक, अब्दुल जब्बार समेत मौजूदीन शहर भी मौजूद थे। हाज़रीन ने मलिक वाजिद को मुबारकबाद दी और दुआए खैर की। रेस्क्यू एहलकारों की जिस्मानी फिटनेस को जांचने के लिए फिजिकल टेस्ट लिया गया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर मियां फराज मुनीर ने कहा कि इमरजेंसी सर्विस में फराज की अंजामदही के लिए फिजिकल फिटनेस का खुलदी किरदार है। तफसीलात के मुताबिक डायरेक्टर जनरल पंजाब इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 डॉक्टर रिजवान नसीर की हिदायत पर तमाम रेस्क्यूज का फिजिकल फिटनेस टेस्ट हर माह मुनक्किद किया जाएगा ताकि रेस्क्यूज की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाया जा सके। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर मियां फराज मुनीर ने कहा कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट लेने का मकसद रेस्क्यू एहलकारों की सलाहियतों को निखारना है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट से रेस्क्यूअर्स को जिस्मानी तौर पर किसी भी नागहानी सूरत हाल में बर वक्त और बेहतर अंदाज में निपटने के लिए तैयार करना है। उनका मजीद कहना था कि इमरजेंसी सर्विस में फराइज की अंजामदही के लिए फिजिकल फिटनेस का कुलदी किरदार है, इसलिए तमाम स्टाफ अपनी फिटनेस को यकीनी बनाएं और दौरान इमरजेंसी अपनी पेशा वराना सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए शहरियों को बेहतरीन सर्विसेज फराहम करें।